So let's begin. Kamar Gardan Seedhi, sit in any meditative posture with a gentle smile on your face. Take a long deep breath. Just focus on your breathing. Try to connect to your own self. Try to connect with the nature around you. Listen to the sounds made by the nature. Feel happy to have this relaxed moment. Let's start with 3 omkars. Breathe in. Once again, breathe in. One more last time. Inhale. Hands in Namaste, Atmanjali Mudra. And let's begin with the prayer. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karivavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Gently rub your palms and cup your eyes. Take a long deep breath. धीरे से गर्दन को नीचे की ओर झुका के slide your hands on your face and your body. Open your eyes. पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे नजरें खोलेंगे, धीरे से सामने देखेंगे and we'll begin with the neck movements. Look to your left, breathe into the center, to your right, center, left, center, right, center, left down, आराम से, right down, left down, right down, chin to chest, गर्दन को नीचे की ओर झुकाएंगे, और ऊपर ऊपर रख के 3 बार मुंह खोल बंद करना है. आ आ आ. धीरे से सामने, 1 full neck rotation, half circle breathe in and half circle breathe out. Reverse, breathe in and breathe out. Looking in front, धीरे से दोनों हाथों को सामने की तरफ खींचेंगे. Stretch, stretch, stretch nicely. Slowly ऊपर की ओर खींचेंगे. Nice stretch. अच्छे से enjoy the stretch. धीरे से on your side. Lateral bending. Coming to the center. On the other side.
coming to the center. वापस से stretch and hold. हाथों को कानों के पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे. Looking towards the sky. Go according to your capacity. Coming to the center. On the other side. हाथों को कानों के पीछे. Looking towards the sky. Coming to the center. And धीरे से relax. शोल्डर रोटेट करेंगे थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा रिवर्स. Stand up, coming to the front of your mat. धीरे से hands on your waist. थोड़ा सा कमर का रोटेशन ले लेते हैं. 1, 2, 3. पेट आगे आएगा. Breathe in, पीछे breathe out. 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2, 1. थोड़ा सा दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस करके साइड ट्विस्ट लेंगे. ट्विस्ट ट्विस्ट एंड होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5. On the other side. 1, 2, 3, 4, 5. Coming to the center. थोड़ा सा बैकवर्ड आज अच्छे से बैक को सपोर्ट करके जितना से हो सकता है. नाइस एंड इजी. लेते हुए ऊपर and come to the beginning of your mat. Let's start with our Surya Namaskar. Everyone ready? Breathe in, breathe out. 1. Breathe in, breathe out. 2. Breathe in, breathe out. 3. Om Mitraయ Namaha. Breathe in, stretch back. Breathe out, forward bending. Right leg goes back into a Swasthana. And today we'll do a little bit different. अगर आपसे होता है तो आप कीजिए, नहीं होता है बैलेंस होल्ड. आपका राइट पैर पीछे गया है, राइट हाथ जमीन पे रखेंगे और लेफ्ट हाथ को ऊपर खींचेंगे. नाइस स्ट्रेच. अच्छे से एंजॉय के स्ट्रेच. And coming back to a Swasthana. Left leg goes back into a plank. Nicely. Knees. Chin chest to the floor. Coming up to Bhujanasana. धीरे से Parvatasana. Hold on. 1, 2, 3, 4, 5. Right leg comes in between your hands. Stretch up in Asana. Left leg comes in between your hands. लेते हुए हस्तोत्तानासन. Backward arch and namaskar. Long deep breath. नमस्कार में जब आप आते हैं तो try to keep your eyes closed and focus. जितना ज़्यादा आप focus करोगे उतना आपका next जो सूर्य नमस्कार है वो बहुत अच्छे से होगा. ओम सूर्याय नमः. Breathe in, backward arch. Breathe out, forward. Left leg goes back into a Swasthana. Adjust yourself nicely. Left palm को अच्छे से जमीन पे रखेंगे और right हाथ को ऊपर अच्छे से खींचना है. Enjoy the stretch nicely. Try to square off your hips. And धीरे से coming back into a Swasthana. Taking your right leg back into a plank. Knees chin chest to the floor. Coming up to Bhujan. Into Parvatasana. अच्छे से try to put your heels on the floor. नहीं जाते हैं तो up and down movement हमेशा आपको करते ही रहना है. याद रखिए जब भी हम यहाँ पे होल्ड करते हैं तो आपका ये वाला मूवमेंट आपको चालू कर देना है. Left leg comes in between your hands. Looking up to the sky. Right leg comes in between your hands. सांस लेते हुए
Hasta Uttanasana. And Namaskar. 3 long deep breath. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Om Sai Namaha. Breathe in, stretch back. Breathe out. Down. Right leg goes back. Right hand on the floor. Left hand goes up. Nice stretch. Deep. Left leg goes back into a plank. Cinches to the floor. Coming up to Bhojan. Coming back to Parvatasana. 5 deep breath. 1, 2, 3, 4, 5. Right leg comes in between your hands. Looking up to the sky. Left leg comes in between your hands. लेते हुए ऊपर हस्तोत्तरासन and namaskar. Long deep breath. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Breathe in, backward arch. Breathe out, forward. Left leg goes back. Left hand on the floor. Right hand up to the sky. अच्छे से square off your hips. Plank. Nicely. Hold on. Knees hinges to the floor. Coming up to Bhujan. Into Parvatasana. 5 deep breath. 1, 2, 3, 4, 5. Left leg comes in between your hands. Up to the sky. Right leg comes in between your hands. सांस लेते हुए हस्त उत्तरासन and namaskar. 3 long deep breath. Breathe in, breathe out. 1, 2, 3. Om Adityaya Namaha. Breathe in, stretch back. Breathe out, forward bending. Right leg goes back. Right hand on the floor, left hand up. अच्छे से stretch करेंगे. धीरे से. Left leg goes back. Knees hinges to the floor. Bhujangasana. Into downward facing dog. Hold on. 1, 2, 3, 4, 5. Right leg comes in between your hands. Left leg comes forward. सांस लेते हुए ऊपर हस्तोत्तरासन and namaskar. सूर्य नमस्कार आप ले रहे हैं उसमें साथ में ब्रीदिंग पे फोकस करना बहुत जरूरी है. So always focus on your breath and do it. Om Bhaskaraaya Namaha. Breathe in, Hastuttanasana. Breathe out, Hastapadasan. Left leg goes back. Left hand on the floor. Right hand up. अच्छे से square off your hips. And then going into a plank. Knees hinges to the floor. Coming up to Bhujan. अच्छे से enjoy this stretch. Going back to Parvatasana. Hold on. 1, 2, 3, 4, 5. Left leg comes back. Looking up to the sky. Right leg comes back. Into Hasta Uttanasana. Breathe in. And long deep breath. Om Bhave Namaha. Breathe in, stretch back. Breathe out, down. Right leg goes back. Right hand on the floor. Left hand up. Stretch the feet and going into a plank. Knees hinges to the floor. Coming up to Bhujan. Back to Parvatasana.
5 deep breath. 1, 2, 3, 4. Right leg comes in between your hands, looking up to the sky. Left leg comes in between your hands. लेते हुए ऊपर and नमस्कार. Deep breath. Om Bhagave Namaha. Breathe in. Uttanasana. Breathe forward bending. Left leg goes back. Left hand on the floor. Right hand up. Try to square off your hips. Coming down into plank. Hold on into plank. Knees stretches to the floor. To Bhujang. Into Panatasana. 1, 2, 3, 4, 5. Left leg comes in between your hands into Asvasanchalan. Right leg comes in between your hands. सांस लेते हुए हस्तुत्तानासन and Namaskar. Deep breath. Nicely. We have completed our 8 सूर्य नमस्कार. जिसको ब्रेक चाहिए वो लोग थोड़ा सा ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो वहीं पे रुक के 3 लंबी गहरी सांस लीजिए. Breathe in, breathe out. अगर आपको लगता है कि you need a break, then and then only you will take the break. Yes, Sucheta, you're ready? Please unmute yourself. Okay, I think yes, everyone is ready. You can start. Can you please just speak a word? Yeah. Hello. Okay, perfect. Yeah, perfect. Come on, let's start. Everyone is ready. Come on. Pratnasan. Om Mitraya Namaha. Hands up for Hastottanasana. Down. Exhale. Hastapadasana. Right leg behind. Ashwasanchalanasana. Left leg behind for a plank. Knees chin chest to the ground. Ashtanga Namaskar. Roll down to Bhujangasana. Parvatasana. Right leg in front. Ashwasanchalanasana, left leg in front. Hastapadasana. Over up for Hastottanasana. And then Sthita Pratnasana. Om Suryaya Namaha. Hastottanasana. Inhale. Exhaling, go down. Hastapadasana. Left leg behind. Ashwasanchalanasana. Right leg behind for a plank. Knees chin chest to the ground. Roll down to Bhujangasana and downward dog. Adho Mukha. Left leg in front and then right leg in front. Hastu Uttam. Om Khagaye Namaha. Hastottanasana. Come down to Hastapadasana. Right leg in front, back. Left leg back, plank. Knees chin chest to the ground. Roll down to Bhujangasana. Parvatasana. Right leg in front and left leg in front. Up for Hastottanasana. Sthita Pratnasana. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Hastottanasana. Come back. Come down to Hastapadasana. Right leg in front, back. Left leg for a plank. Knee chin to the ground. Roll down to Bhujangasana. Parvatasana. Right leg in front. Left leg in front. Up. Ganga. Om Adityaya Namaha. Up. Hastottanasana.
down, Hastapadasana, left leg behind, right leg behind for plank, then twist to the ground, roll down to Bhujangasana, Parvatasana, leg in front, right leg in front, up, Bhujangasana. Sthita Pratnasana. Om Bhaskaraయ Namaha. Up, Hastottanasana, down, Hastapadasana. Right leg back, left leg back over plank. Knees then just to Hasta Namaskar. Hold on to Bhujangasana. Parvatasana. Right leg in front, left leg in front for Hastapadasana. Up for Hastottanasana. Sthita Pratnasana. Om Rave Namaha. Hastottanasana. Hastapadasana. Right leg back, left leg back. Knees in chest to the ground. Up. Parvatasana. Right leg in front, left leg in front. Up. Hastottanasana. And Sthita Pratnasana. Om Rave Namaha. Hastottanasana. Left leg behind, right leg behind. Knees touches to the ground. Roll down to the sun. Parvatasana. Left leg in front, right leg in front. Hastottanasana. Sthita Pratnasana. Thank you, Sujata. Over to you. Please mute yourself and friends ready for our express train. इन लंबी सांस ले लीजिएगा. Om Pushpe Namaha. Breathing, stretch back, down. From your palms to nicely and jump into a plank. Knees chest to the floor, coming up to Bhujan. Parvatasana. Jump back in between your hands. सांस लेके ऊपर हस्तासना. नमस्कार. Breathe it out. Om Hare Namaha. Breathe in up. Down, jump back. Parvatasana. Jump back in between your hands. Uttanasana and Namaskar. Breath and Om Hare Namaha. Breathe it up. Breathe out down. Jump back into a plank. Knees chest to the floor. Up to bottom. Downward facing dog. Jump back. Hastottanasana and Namaskar. Breathing through out. Om Savitre Namaha. Breathing stretch back. Breathe out down. Jump back. Knees chest to the floor. Up into Bhujan. Parvatasana. Jump back. Hastottanasana and Namaskar. And the last one we'll do with the holding. Very long deep breath. Om Mitraయ Namaha. Hold on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Om Suryaya Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Hastapadasan, touch the floor. Om Hare Namaha. 2, 3,
9 and 10. Right leg goes back into Hasana Center and look towards the sky. Om Hiranyagarbhaya Namaha. 1, 2. Right leg to the posture. 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Into a plank. Om Adityaya Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Knees to chest to the floor. Om Astaraya Namaha. Ashtanga Namaskar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Bhujangasana. Om Rame Namaha. Up and down. Knee to breathe out. Breathe in. 2. Knee to breathe out. 3. Over breathing. 4. Knee to breathe out. 5. Over breathing. Knee to breathe out. 6. Over breathing. Knee to breathe out. 7. Over breathing. Knee to breathe out. 8. Over breathing. Look to your left. Look to your right. Left. Right. To the center. Coming down. And going back to Bhujangasana. Coming into Parvatasana. Om Bhanave Namaha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Left leg comes forward. Om Bharite Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Om Harikaya Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And अच्छे से सभी देवता को प्रणाम करेंगे क्योंकि ओम सवित्र सूर्य नारायणाय नमः. 2, 3, 4, 5, 6, अच्छे से झुकिए 8, 9, 10. Coming up and to Savasana. मैं देख रही हूँ काफी लोग हैं ना, वो लास्ट वाला जो हम होल्डिंग वाला करते हैं उसको स्किप करते हैं. तो भाई आप लोगों से भाई थोड़ी सी निवेदन है कि स्किप मत कीजिए, होल्ड करते हुए कर कीजिएगा, सो दैट everyone can enjoy it. It's a very important to hold the posture also. जो क्लासिकल सूर्य नमस्कार है उसमें एक्चुअली वी आर सपोज टू होल्ड, लेकिन अगर मैं आपको 21 बार इतना होल्ड कराऊंगी तो आप 5 बार में ही भाग जाओगे. इसलिए हम सिर्फ लास्ट वाला एक वाला ही हम होल्ड करते हैं. होल्ड करेंगे कोई भी पोस्चर, देन ओनली यू विल बी एबल टू इम्प्रूवाइज द पोस्चर. व्हेन यू आर इन द पोस्चर, आप जब पोस्चर में रुके हुए हैं, यू आर होल्डिंग द पोस्चर, एट दैट टाइम फोकस
फोकस ऑन योर ब्रेथ, फोकस ऑन योर पोस्चर। आपके हाथों के पोजीशन चेक कीजिए, आपकी बैक की पोजीशन चेक कीजिए, आपके पैरों की पोजीशन चेक कीजिए, एंड ट्राई टू इम्प्रूव द पोस्चर। यू आर द वन हु कैन इम्प्रूव इट। आपका पोस्चर कौन इम्प्रूव कर सकता है? सिर्फ आप इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे इम्प्रूव करोगे? जब आप उसको एनालाइज करोगे, स्वाध्याय करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा पोस्चर कहाँ पे अच्छा हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। पहले ढूंढो, अपने अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको ढूंढो और फिर हम उसको सही करेंगे। So just lie down into Savasana and now relax yourself. Whenever you are doing the Surya Namaskar, make sure each and every posture that we are taking, each and every asana that we are taking, हर एक को परफेक्टली करके ही आगे बढ़ना है। कई बार क्या होता है कि बहुत फास्ट सीक्वेंस में जा रहा है, तो because we are not able to, some people are not able to cope up with the speed, तो उसमें फिर क्या हो जाता है, क्योंकि आप उस स्पीड पे नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप क्या करेंगे, वो एक आध आसन आपका बीच में स्किप हो जाएगा, या आप उसको स्किप करके फटाफट आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। तो वैसे मत कीजिएगा। हमें जितना होता है उतना आप कीजिए, डोंट वरी। बाकी लोग आगे भाग रहे हैं, हम हमारी स्पीड से परफेक्टली धीरे धीरे आराम से आगे जाएंगे, बिकॉज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सो डोंट वरी अबाउट द पेस। थोड़ा सा हम उसको कार्डियो के साथ मिक्सअप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फिर धीरे धीरे हमें आगे इंक्रीज करना है, तो थोड़ा स्पीड में भी हम एड ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। So that is why we are adding the speed, but don't worry, agar if you are not able to catch up with the speed, that is perfectly okay. So relax yourself nicely, gently, release yourself completely on the floor. ग्राउंड पे अपने आप को पूरा अच्छे से ढीला छोड़ देंगे। No stress, no tension, बस अपने आप को रिलीज कर दीजिए। भूमाता के ऊपर अपने आप को आपने पूरा लेटा दिया है। नाउ रिलीज योर होल वेट ऑन द अर्थ। फॉरगेट एवरीथिंग। Just remember, it is the same Zoom ID and password that we have been using every day. So if we are not able to send it in the morning, please just use the same ID and password to join. Relaxing your toes. Tell yourself, my toes are relaxed.
Relaxing your calf muscles, your knees, your thighs, completely relaxed. Relaxing your back, your stomach, relaxing your chest muscles, your heart. Listen to your heartbeats. Relaxing your palms, your fingers, your wrist, your elbows, your shoulders. Relaxing your neck muscles. Relaxing your facial muscles, eyes, ears, nose, cheeks, chin. Relaxing your tongue inside your mouth. Relaxing your eyeballs inside your eyes. Relaxing your forehead, your eyelids. Feeling yourself completely relaxed. Slowly wiggle your hands and your legs. Interlock your hands above your head and stretch your arms, stretch your legs down. Nicely, pull nicely. नाभि से आपके बॉडी के दो पार्ट हो गए हैं. Stretch, stretch, stretch. लेटे रहिए. Stretch and release. Bend your knees and hands in T position. Twist to your left and look towards your right. Enjoy the stretch. One knee on top of other. Change your sides. Knees on one side. Neck on the other side. With a gentle smile on your face. Squeeze your entire body into child pose on the left side. अच्छे से पूरा body को सिकुड़ लेना है. It feels safe and secure like it's in the mother's womb. पूरा अच्छे से. Squeeze yourself very nicely. And slowly taking the support of your hands, come into sitting position. आंखें बंद रहेगी.
Adjust yourself and we'll take 3 Brahmrik. Hands in Namaste. We'll take the Gayatri Mantra. Om Bhurvasvaha Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayam. Om Shanti Shanti Shanti. एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करेंगे. शोल्डर्स रोल्ड बैक. स्ट्रेच योर आर्म्स बैकवर्ड्स. ऊपर लंबी गहरी सांस लेके धीरे से सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग. जहां तक आप जा सके वहां तक. एंड स्टे ओवर देयर. माता के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है. आराम से धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आएंगे. Feeling confident and blessed. दोनों हाथों को नमस्ते में. Rub your palms gently. Cup your eyes. धीरे से चेहरे पे पूरा हाथों को घुमाते हुए, बॉडी पे घुमाते हुए पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे हमेशा नजरें खोलेंगे. चित्कारी. And shake. Let me see if Dr. Saab has connected with us. Our health tip of the day is waiting for us. So just give me a moment. You guys can continue with your pranayam in the meanwhile. Dr. Mukul Choksi is with us. Dr. Saab, आपका please unmute कर दीजिएगा. Very good morning, Nikal Ben. Very good morning. आपका वीडियो ऑफ हो गया है सर. Yes, yeah, we can see you. Very nice, lovely morning. वापस से वीडियो ऑफ हो जा रहा है. हाँ जी. सर हमने अभी हमारा आपका म्यूट वापस से हो गया है. Just press it once. Yeah, that's fine. Yeah. Now, am I audible and visible? Yes, both audible as well as visible. बहुत अच्छे से. Wonderful, wonderful. So, हमने अभी हमारे 21 सूर्य नमस्कार कंप्लीट किए हैं और आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं. हमारे लिए it's very. You are able to hear me? Absolutely fine. Yes. Yeah. Okay, yeah. So now you are with us over here. तो आपको हमें you are yourself a very good psychiatrist and you know the importance of exercising also. तो हमारे जो participants हैं उनको motivate करने के लिए exercise का थोड़ा सा आप importance आज की हमारी health tip of the day हमारे साथ share कीजिए please. Ji, Nikita, first of all, I am very much thankful to you for allowing me to join such a wonderful group. In fact, I have been watching for last couple of minutes. Everybody in your group, they appear so enthusiastic and energetic कि इनको मोटिवेट करने के बदले मैं इनकी वजह से मोटिवेट हो रहा हूँ. Let it be other way around.
that I see them doing all the things and I feel motivated. और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं ये कभी-कभी करता हूँ लेकिन रोज नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे लगता है कि आइंदा जल्द से जल्द मुझे आपका ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा और ये अच्छी-अच्छी चीजें मुझे भी करनी चाहिए। निखिल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो ऑल इंडियन ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल जो भी कल्ट्स है, जो भी संप्रदाय है और इसमें जो भी गतिविधियां हैं, इसमें आप चाहे आर्ट ऑफ लिविंग ले लो, चाहे विपश्यना ले लो, चाहे कुमारी ले लो, चाहे योग, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, सूर्य नमस्कार जो कि आप करवा रही थी अभी, तो ये सब जो अपने ओल्ड इंडियन ट्रेडिशनल हीलिंग मेथड है, मैं इसको हीलिंग मेथड बोलूंगा बिकॉज इट हील्स बॉडी, इट हील्स माइंड, इट हील्स द एंटायर लाइफ। हमें जहाँ जो जो जख्म हुए हैं छोटे मोटे, ये मन पे हो सकते हैं, तन पे हो सकते हैं, जीवन पे हो सकते हैं, तो इनका जो एक हीलिंग प्रोसेस है, ये हीलिंग प्रोसेस को अच्छी तरह से एक्टिवेट करना, ये इन चीजों का काम है। हमें देखने से लगता है कि जैसे ये क्या है, हाथ पांव हिलाना और सांस खींचना, इससे कैसे हीलिंग होता है, बट आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली साइंटिफिक, इट्स इवन मोर देन साइंटिफिक। क्योंकि हमारे जो बॉडी की जो माइंड की जो चेतना है, द रियल एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम विद इन, और वो इनका लोकेशन हमें पता नहीं है, वी डोंट नो कि कहाँ से आ रही है, लेकिन जो ऊर्जा है, जो चेतना है, जो इनका प्राण से संचार होता है, वो जहां से आता है वो जगह को ये सब प्रक्रिया छू रही है। जैसे कि इनका एक साइंटिफिक बेसिस है कि जैसे आप मसल को स्ट्रेच करते हो, हाथ पांव को हिलाते हो, तो इससे आपके जॉइंट्स और आपके मसल्स, इनका स्ट्रेंथनिंग होता है। और जॉइंट्स और मसल जो है वो स्टेबिलिटी के लिए, मोटिलिटी के लिए, अपने कोऑर्डिनेशन के लिए, बैलेंस के लिए, वो सब के लिए जरूरी है। तो सबसे पहला जॉइंट और मसल्स का जो स्ट्रेंथनिंग होता है, बैलेंसिंग होता है, दैट इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जो स्ट्रेचिंग करवाती है आप, इससे हर एक जॉइंट में, हर एक मसल में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी इट्स अ सिंबॉलिक थिंग। जो लोग अपने तन को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, इधर उधर कहीं भी कर सकते हैं, वो लोग अपने जीवन में भी फ्लेक्सिबल रह सकते हैं। क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी आती है कि जहां हमें मुड़ना पड़ता है, हमें झुकना पड़ता है। हम अगर हम उसके सामने अगर इरेक्ट रहने जाएंगे तो कई बार गिर जाते हैं। तो हमें फ्लेक्सिबल बनना है। जिस तरह एक पौधा हवा का झोंका आता है तो ऐसे हल्के से मुड़ जाता है, और झोंके को निकल जाने के बाद वो फिर से सीधा हो जाता है। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बदन की फ्लेक्सिबिलिटी है, तन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो अल्टीमेटली सिंबॉलिकली हमारे मन को भी एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है। और फ्लेक्सिबिलिटी जीवन की सबसे अहम बाबत है। आज मैं कई लोगों को काउंसिल करता हूं, तो जो यंग कपल आते हैं जो मैरिज के लिए उत्सुक है, तो बोलते हैं कि सर क्या चीजें हमें एक दूसरे में ढूंढनी चाहिए। तो मैं जो एक ही चीज बताता हूँ कि अगर दोनों में एक ही चीज हो तो और कोई चीज की जरूरत नहीं। आपको इतना ज्यादा प्यार नहीं हो एक दूसरे से तो चलेगा, आपको बहुत अफेक्शन हो, बहुत पेशन हो नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो संसार में आप कोई भी परिस्थिति में टिक पाएंगे। तो ये बॉडी और जॉइंट्स की जो मूवमेंट है, एंडलेस मूवमेंट्स, वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है, तन में, मन में और जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी देती है। दूसरा, ब्रीदिंग। आज कोरोना के पीरियड में हमें पता चलता है कि ब्रीदिंग कितना इंपॉर्टेंट है। आज तक ब्रीदिंग को हमने बहुत इग्नोर किया है, लेकिन कोरोना में जब निमोनाइटिस होता है तो हमें पता चलता है कि हम लोग सब ऑक्सीमीटर लेकर 95 है, 97 है, अगर 92 हो गया तो तुरंत डॉक्टर को फोन लगाता है कि सर ये तो 92 हो गया। तो फिर सर बोलेंगे कि चलो चलो फटाफट ये दवाई ले लो, आप थोड़ा ऑक्सीजन लगा लो, बाहर घूमो वगैरह, वॉट एवर इंस्ट्रक्शन दे वांट टू गिव दे विल गिव। तो हम ऑक्सीमीटर पे आ गए अभी। तो ये क्या हालत हो गई कि हम ऑक्सीजन से, हमारे ब्रीदिंग से थोड़े परे हो गए थे। तो आज ये कोरोना काल ने हमें सिखा दिया कि ऑक्सीजनेशन की, ब्रीदिंग की कितनी अच्छी हमें जरूरत है। तो ये सूर्य नमस्कार जो है, योग जो है, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन जो है, ये सब हमें अपने ब्रीदिंग पे कंट्रोल लाना सिखाती है। और डीप ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग, शैलो ब्रीदिंग, वन नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, टू नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, ये जो भ्रमरी है, जो प्राणायाम के अलग अलग प्रकार है, वो सब चीजें हमें ब्रीदिंग पे कंट्रोल देती है। और कंट्रोल्ड ब्रीदिंग इट्स अ वंडरफुल थिंग। हमें जितना ऑक्सीजन जरूरी है उतना हम हवा में से खींच सकते हैं। हमारे चारे आसपास ऑक्सीजन फैला हुआ है, लेकिन हमें कितना खींचना है वो अपनी कैपेसिटी पर निर्भर करता है। वो कैपेसिटी बढ़ाने का काम
ये आप जो सिखाती हो उससे होता है। तो स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, मसल टोन, बॉडी मूवमेंट्स, रेस्पिरेशन, ये सब साथ मिलके हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करती है, हमारे स्किन के टेक्सचर को अच्छा करती है, हमारे बॉडी की सभी प्रोसेस को एनहेंस करती है। तो ये माइंड और बॉडी का जो अच्छा सा ब्लेंड है, जो कॉम्बो है, इन दोनों को अगर अच्छे ढंग से हमें मेंटेन रखना है, हमें इनको अच्छी तरह से प्रोग्रेस करवाना है, तो मैं समझता हूँ कि मीतल जो आप करवा रही है, दैट इज अ वंडरफुल थिंग। और आई विश कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन हो इसमें। हमें भी कभी टाइम मिलेगा तो आपको रिक्वेस्ट करके 1-2 दिन के लिए हम आपसे ज्वाइन हो जाएंगे। और Sure, sir. It's our pleasure. मैं देख के मोटिवेट हो रहा हूँ। मेरे बहुत सारे योगाचार्य, बहुत सारे मेरे मित्र हैं, तो इनसे भी मैं कभी कभी चांस लेके सीख रहा हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत सारी एनर्जी इसमें से मिलती है, क्रिएटिव एनर्जी मिलती है, बहुत सारी क्रिएटिव एनर्जी मिलती है। जो हमारे जैसे क्रिएटर है, जो क्रिएट करते हैं, वो साहित्य में, कला में, संगीत में, स्पोर्ट्स में, कहीं भी है, जो क्रिएटिव है, उसको क्रिएटिव एनर्जी मिलती है, एडेप्टेबिलिटी, एडजस्टेबिलिटी मिलती है, लाइफ को फेस करने की एनर्जी मिलती है। और स्पेशली अर्ली मॉर्निंग में मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो लोग घर में है, 4 दीवारों के बीच में, अपनी अपनी टेरेस पर चले जाएं, आप खुली हवा में आ जाओ। दिस इज अर्ली मॉर्निंग। सूर्य नमस्कार है तो सूर्य को तो देखना ही चाहिए। आप अपनी विंडो में से अगर देख रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन सूर्य तो टेरेस में से दिखाई दे रहा है। मैं आपको मैंने ये जगह पसंद की, मीतल जी की सामने सूर्य है, तो मैं जरा आपको भी दर्शन करवा दूं। Oh yeah, lovely, lovely, very nice. विंडो में से आपको सूर्य का दर्शन हो Yes. रहा है, और मैं ऐसे खड़ा हो रहा हूँ कि पीछे आपको सूरज दिखाई देगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Putting Right. on the spotlight, no? एक सेकंड, मुझे लाइटिंग का एडजस्टमेंट नहीं आ रहा, लेकिन देखो मेरे पीछे सन है, मॉर्निंग है, या दिस इज हियर इट इज, राइट। सो मुझे लगा कि सूर्य नमस्कार में अगर ज्वाइन होना है तो मुझे सूर्य नारायण, सूर्य देवता को स्वयं साथ में लेना चाहिए। तो मैंने मेरे सामने ही सूर्य के दर्शन हो इस तरह का रूम मैंने सिलेक्ट किया। तो मुझे लगता है कि घरों में रहने के बावजूद अभी टेरेस की कीज नहीं थी, तो अगर होती तो टेरेस में जाके चीज करनी चाहिए। तो अपनी मेट लेके ये चीज टेरेस में करनी चाहिए। साक्षात स्वयं सूर्य के सामने जो करते हैं, तो इनका भी एक अलग अलग तरह का एक रोमांच होता है, और अलग अलग तरह की अंदर से एक ऊर्जा पैदा होती है। बिकॉज इस संसार की सभी ऊर्जाओं का स्रोत जो है, वो एक एवं स्वयं सूर्य है। हर ऊर्जा, हर एनर्जी के बिगिनिंग जो स्रोत है, वो सूर्य से है, और सिर्फ सूर्य से है। तो अगर सूर्य का नमस्कार करेंगे, वंदन करेंगे, और सूर्य नमस्कार से शुरुआत करेंगे दिन की, तो उससे उससे ऊपर की संसार में कोई चीज नहीं है। निकल, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी Thank you, thank you, thank you very much. मच। थैंक यू फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपको मुकुल जी के बारे में थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ। जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं, ही इज अ साइकेट्रिस्ट। इसके अलावा ही इज हिमसेल्फ अ पोएट, ऑथर। इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हुई है, इनके बहुत सारे कॉलम्स भी आते हैं। वो बहुत सारे मीडिया के ऊपर भी इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं। और इतने बिजी शेड्यूल में से इनका टाइम चुराना मेरे लिए थोड़ा हार्ड था, लेकिन हमने उनका टाइम चुरा लिया। आई एम ग्लैड दैट आई वाज सक्सेसफुल टू गेट यू ओवर हियर। और बहुत इन्होंने, उनके लेक्चर्स भी चलते हैं कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, ऑन सेक्सुअल एजुकेशन, एड्स, HIV, कंसल्टिंग, ड्रग एडिक्शन, मैरिज लाइफ। बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस भी चलते हैं इनके। और recently he has also been awarded by the prestigious Kalapi Award given by the Indian National Theatre, Mumbai. He is also a member of Gujarati Sahitya Academy. और न जाने कितना ही चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो मुकुल जी करते हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। सर, आप एक साइकेट्रिस्ट है, तो आई एम श्योर नॉर्मली जो मेरे सारे सूर्य नमस्कार के हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके पास बाकी सारे जो डॉक्टर्स आते हैं ना, उनके लिए क्वेश्चंस का ढेर होता है। तो but like when it comes to psychology at that time, why is it कि मुझे घुटने में दर्द है तो मैं एकदम आराम से कह पाती हूँ, लेकिन मुझे अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ।
ऐसा क्यों है? सच्ची बात बताई निखिल जी आपने कि यहाँ हमारे यहाँ एक सोच है, एक स्टिग्मा है, जैसे अगर कोई बोलेगा कि मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो लोग उनसे दूर हो जाएंगे, लोगों को लगेगा कि ये तो साइको है और इसमें कैसे भरोसा किया जाए क्योंकि उसके दिमाग का कोई ठिकाना नहीं है। आई थिंक दिस इज नॉट फेयर। हमने अभी अभी देखा कि कितने सक्सेसफुल लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं। आज से 5 साल पहले आप देखो एनडीटीवी में, वो अभी भी आप एनडीटीवी देखिए, आप उसको लिखो, डिप्रेशन लिखो। Sir, your voice is breaking. Your voice is breaking. हाँ. एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड। आई एम सॉरी। Yeah, perfect. तो एनडीटीवी पे आप देखो दीपिका डिप्रेशन इतना लिखो आप, तो 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू दिया है एनडीटीवी को 5 साल पहले दीपिका ने कि शी हरसेल्फ वाज अंडर सीवियर डिप्रेशन और उन्होंने दवाइयां ली, उसने ट्रीटमेंट की और उसके बाद वो टॉप नंबर 1 हीरोइन बन गई। तो वो अगर कह सकती है कि मुझे डिप्रेशन था तो आज किसी को बोलने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। अभी अभी पता चला कि महेश भट्ट की जो आलिया भट्ट की सिस्टर जो है शाहीन भट्ट, वो भी डिप्रेशन में थी। शी केम आउट ऑफ डिप्रेशन। उसने एक किताब लिखी है और उसका गुजराती ट्रांसलेशन भी यहाँ हमारी एक जानी मानी कवयित्री है ईशा दादा वाला वो कर रही है। तो और डिप्रेशन में अभी आमिर खान का बेटा जो है ही ऑल्सो डिक्लेयर्ड कि मैं बहुत सालों से डिप्रेशन में हूँ। तो यहाँ मतलब अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग बॉलीवुड में, इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में, कई लोग, बादशाह करके जो एक अच्छा सिंगर है, न्यू वेव सिंगर, हमें तो बहुत सुना नहीं हम लोगों ने, लेकिन ये नई जनरेशन जो है वो जनरेशन का सिंगर है। वो खुद उसने बताया था कि मैं बहुत बड़े डिप्रेशन में था और आई केम आउट ऑफ डिप्रेशन। तो मानसिक बीमारियां जो है एंजाइटी, इंसोम्निया, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, तनाव, ऑब्सेशन, डिप्रेशन, ये सब जो बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां, इससे लोग अभी डर रहे हैं, लोग न जाने क्यों परेशान हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस इन लोगों में लानी चाहिए कि जिस तरह हमें जॉइंट के पेन होते हैं, जिस तरह हमें मसल्स में पेन होते हैं, जिस तरह एसिडिटी होती है, इसी तरह हमें एंजाइटी, डिप्रेशन और नर्वसनेस और स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी कई बार तो क्या होता है कि जॉइंट पेन मानसिक वजह से भी हो सकता है। कई बार आप देखो, कई लोगों को, ऑर्थोपेडिक सर्जन को आप पूछिए कि कई ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास कई लड़कियां जाती है, उनको बैक पेन होता है और उसका एमआरआई नॉर्मल आता है, उसके सब टेस्ट नॉर्मल आते हैं और फिर सर्जन बताता है कि तुम्हें कुछ नहीं है। लेकिन कुछ नहीं है तो क्या करो, तो तुम साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। तो वहां जाके उसको पता चलता है कि मेरा जो पेन है वो साइकोसोमेटिक पेन है। मतलब कि ये पेन सोमेटिक मतलब फिजिकल, मेरा पेन फिजिकल है लेकिन इसकी वजह जो है वो माइंड में है, तो इसको साइकोसोमेटिक पेन बोलते हैं। तो कई लोगों को एसिडिटी होती है, बार बार यूरिन होना, अब पाँव में दर्द होना, कहीं खुजली होना, कहीं झिंझनी होना, कहीं खालीपन लगना, तो ऐसे बहुत सारे जगह, माइग्रेन जैसे साइकोसोमेटिक है, हाइपरटेंशन साइकोसोमेटिक है, कई लोगों को अस्थमा होता है तो अस्थमा भी साइकोसोमेटिक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कोलाइटिस है, इतने सारे रोग जो है वो साइकोसोमेटिक रोग है। मतलब इनकी दवाई अगर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जाए तो इसके फिजिकल एलिमेंट, फिजिकल बीमारी भी अच्छी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि लोगों को अवेयरनेस लानी चाहिए और बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बीमारियों को आगे बढ़ने में जोखिम है। अगर ये साइकोसोमेटिक बीमारी अगर आगे बढ़ी और हम लोग डरते रहे कि मैं किसी को बताऊंगा कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाता हूँ, तो डर के मारे अगर तुम नहीं जाओ तो तुम्हारी बीमारी बढ़ जाएगी, फिर कंट्रोल के बाहर चली जाएगी। इसके बदले बेहतर है कि तुम डिक्लेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम डिक्लेयर करोगे तो तुम्हारे पीछे पीछे और 4 लोग भी डिक्लेयर करेंगे कि हाँ ये तो मुझे भी था प्रॉब्लम, क्योंकि समाज में साइकोलॉजिकल इलनेसेस का प्रिवेलेंस और इंसिडेंस है अराउंड 30%। 100 में से 30 लोग, 30 पीपल आर सफरिंग फ्रॉम साइकेट्रिक इलनेस। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी हाल से अच्छा होना है। ऐसा जरूरी नहीं कि साइकेट्रिस्ट सबको अच्छा करे, कई बार साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है, योग टीचर है, ऐसे सूर्य नमस्कार सिखाती है निखिल जी आपको, तो ये सब भी एक तरह का हीलिंग है, एक तरह की ट्रीटमेंट है। कई बार कथा सुनने से, कई बार अच्छी किताबें पढ़ने से, कई बार गार्डनिंग करने से, स्पोर्ट्स करने से, कई बार दौड़ने से, चलने से, एक्सरसाइज करने से भी अच्छे हो जाते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ रेमेडीज। ऐसा जरूरी नहीं कि कई बार आप साइकियाट्रिस्ट के पास दौड़ के जाओ, आपके फैमिली डॉक्टर भी आपको अच्छा कर सकते हैं। अच्छी पढ़ाई से अच्छा हो सकता है, अच्छा परिवार मिलने से, अच्छा फ्रेंड सर्कल करने से, गीत गाने से, कविताएं लिखने से, बागों में घूमने से, सुबह हवा में बाहर निकलने से, साइकिलिंग करने से भी मानसिक बीमारियां अच्छी होती है। तो आई थिंक ये सब चीजें हमें नई नई है और सीखनी चाहिए। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ जो मेरे पार्टिसिपेंट्स है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वी हैव अ स्पेशलिस्ट विथ अस। यस, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते। जी जी जी। Excuse me, sir. मैं तो नितिन जी, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मैंने जो बोला इसमें सबके सब क्वेश्चन सॉल्व ही हो गए हैं। हाँ जी, बहुत सही बात बताई आपने। यस, या फ्रेंड्स, रश्मि जी आप कुछ डिस्कस करना चाहते थे? हाँ, एक्चुअली मुझे एक पूछना था कि एंगर का कुछ साइकोलॉजी से मतलब रिलेट करता है क्या? क्योंकि मेरे हस्बैंड को मतलब बहुत गुस्सा आता है। हाँ हाँ, तो गुस्सा तो एक साइकेट्रिक बीमारी का लक्षण है। गुस्सा खुद बीमारी नहीं है, लेकिन गुस्सा कोई बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो आप एक बार हमें मिलवाइए और हमसे बात करवाइए, क्योंकि कई गुस्से छोटा सा इलाज करने से अच्छे हो जाते हैं और इंसान पूरा बदल जाता है। आप इसको बिल्कुल शांत कर सकते हो। तो ऐसे गुस्सा हम क्या करते हैं कि गुस्से के सामने गुस्सा करते हैं और गुस्सा को शांत करने के लिए गुस्सा करते हैं। तो ये जैसे कांटों से कांटे निकालने की बात है, लेकिन कांटे से कांटा निकलता है, गुस्से से गुस्सा नहीं निकलता है। गुस्से से गुस्सा बनना दुगना हो जाता है। तो आप गुस्से से गुस्सा निकालने की कोशिश मत करो, इसको शांति से हैंडल करो, इसको समझो, इसके गुस्से की वजह समझो, और फिर भी अगर नहीं निकलता है तो एक बार बात करवाइए किसी भी साइकियाट्रिस्ट से या काउंसलर से बात करवाइए। तो शायद ये हर गुस्से निकल सकते हैं। इंसान अगर अच्छा है, अगर बाकी सब चीजें अच्छी तरह कर सकता है, तो गुस्सा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ये वैसे बाकी सब अच्छा है, लेकिन सिर्फ गुस्सा छोटी छोटी बातों पे आता है। कोई हाँ, तो एक बार आप हमसे बात करवाइएगा। मैं वादा करता हूँ आपसे कि इतने शांत हो जाएंगे कि आपको लगने लगेगा कि अभी मैं गुस्से वाली हो गई, लेकिन ये तो शांत हो गए। बहुत बहुत जी अच्छा। जी, जरूर। मेरा एक सवाल था डॉक्टर साहब। अभी जी। बहुत मीन्स जब ये एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, तो एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स बहुत टाइम साइड इफेक्ट उसके ज्यादा रहते हैं। फॉर एग्जांपल मीन्स कोई कोई टैबलेट जो आपको नींद आता है उससे, तो कितना सही है ये एंटी डिप्रेशन टैबलेट लेना? और हम लोग को कभी एंटी डिप्रेशन टैबलेट की जरूरत पड़ती है? मतलब काउंसलिंग से काउंसलिंग कभी कभी ठीक हो जाता है, कभी कभी वो टैबलेट लेने की जरूरत पड़ती है, तो ये नौबत कब आती है? जी, That's what my question is. आपका सवाल सही है कि एंटी डिप्रेशंस की चंद साइड इफेक्ट होती है। ये बात सही है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन हमें ऐसा देखना है कि इनकी इफेक्ट कितनी है, क्योंकि हर बार साइड इफेक्ट के डर से हम लोग वो चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। एंटी डिप्रेशन की इफेक्ट आप देखो कि जब कई लोग आत्महत्या करना चाहते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं, तो वो लोग को हम एंटी डिप्रेशन के जरिए बचा पाते हैं। अगर 6 महीने एंटी डिप्रेशन दे दी जाए, तो आज सूरत में रोज 4 सुसाइड होते हैं, महीने में 120 सुसाइड होते हैं। तो 120 में से मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह एंटी डिप्रेशन दे तो एटलीस्ट 120 में से 100 सुसाइड को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। साल में 1200 लोगों को, 1200 फैमिली को हम हेल्प कर सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं। लेकिन हर चीजों में, हर छोटी छोटी चीजों में एंटी डिप्रेशन दे देना वो भी ठीक नहीं है। जैसे आप बताते हो कि कई छोटी मोटी बात है, जैसे चुपचा हल्का सा गुस्सा आ गया या कभी कभी हल्का सा लो मूड हो गया, तो मैं समझता हूँ कि उस समय काउंसलिंग, अपने जीवन की गतिविधियों पे बारीक नजर, अपने लोगों के अपने जो लोग हैं उसके साथ कोई जीवन को रिजुविनेट करने की छोटी मोटी चीजें की, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन, ये सब चीजें अपना मूड बदल देती है। मैंने कई लड़कियों को ऐसा देखा है कि अचानक इसका मूड डाउन हो जाए तो वो बाहर निकल के एक शॉपिंग करके आती है छोटा सा, अरे एक चॉकलेट पेपरमिंट खा लेती है ना, तो उसका मूड अच्छा हो जाता है। कई लड़कियों को मिरर के सामने खड़े रहती है, अपनी हेयर स्टाइल जरा बदल देती है, कुछ लिपस्टिक लगा देती है और एक अच्छा सा कॉल कर लेती है, सोशल मीडिया पे 1-2 मिनट बात कर लेती है, तो इसका मूड अच्छा हो जाता है। और फिर अच्छा होने के बाद पता चलता है कि मेरा मूड तो इसलिए डाउन हुआ था कि कल मैंने इतनी अच्छी पोस्ट लिखी, लेकिन मेरी फलानी फलानी दोस्त ने तो मुझे लाइक किया ही नहीं, तो इसलिए मूड डाउन हो गया। तो उसके साथ फोन पे बात कर दी और वो लड़की ने बोल दिया कि अरे वो तो सबसे अच्छी थी, लेकिन कल मैंने मेरा फेसबुक या मेरा इंस्टा मैंने चेक ही नहीं किया। तो मुझे लगता है कि अपने कई बार छोटे छोटे जो मूड स्विंग्स होते हैं, इसकी छोटी छोटी वजह भी होती है, और वजह को अगर ढूंढ निकाले, उसको अगर एड्रेस करें, तो कई डिप्रेशन तो काउंसलर की भी जरूरत नहीं है, हम सेल्फ खुद ही अच्छा कर सकते हैं। और अगर खुद से अच्छा नहीं होता तो कई बार आप काउंसलर साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स फिलोसोफर गाइड हो उसकी मदद ले सकते हैं,
अपने परिवार में भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, बुजुर्ग, अड़ोस पड़ोस वाले, सगा स्वजन, स्नेही की मदद ले सकते हैं। और अगर उससे भी अच्छा नहीं हो, उसके बाद लास्टली हमारा काम है, साइकियाट्रिस्ट तो लास्ट है, हम तो ये क्यू में आखिर में है। जब तक सब कुछ करने के बावजूद भी अगर नहीं हुआ तो ही दवाई देते हैं। दवाई बहन जी, दवाई पहली चीज नहीं है, दवाई आखिरी चीज है, लेकिन दवाई की जरूरत जिसको है इसको अचूक देना चाहिए, क्योंकि कई बार दवाई न लेने से इंसान सुसाइड की ओर बढ़ जाता है और डिप्रेशन इतना गहरा हो जाता है कि फिर इसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो चेतना जी, आपका अच्छा सवाल था, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग क्वेश्चन। नितल, शैल वी स्टॉप नाउ? मेरा एक और सवाल है। बहुत बार मीन्स अपने फैमिली में हम लोग देखते हैं, अपने को मालूम पड़ता है कि इनको जरूरी है साइकेट्रिस्ट की, बट द पर्सन जिनको जरूरी है वो मानने के लिए तैयार नहीं कि नहीं, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। तो ऐसे में उस पर्सन को कैसे हेल्प कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो पर्सन खुद ही हेल्प के लिए तैयार नहीं, तो ऐसे पर्सन को हम लोग कैसे हेल्प करें? चेतना जी, ये बहुत अहम बात आपने कर दी, क्योंकि हम 35 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं, फिर भी आज तक ये उसका आंसर मुझे भी नहीं मिला। क्योंकि हमारी किताबों में ऐसा लिखा है कि ये रोग है तो इसकी ये दवाई है, ये है इसका ये इलाज है। लेकिन अगर इंसान इलाज लेने को तैयार ही नहीं हो तो क्या करना है? वेरी डिफिकल्ट। लेकिन मुझे लगता है कि जो इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, जैसे मान लो हस्बैंड एंड वाइफ है, अगर हस्बैंड अल्कोहलिक है तो अल्कोहल छोड़ना नहीं चाहेगा। अगर इसकी वाइफ बेचारी रो रो के मर जाए, उसके बच्चे चिल्ला चिल्ला के मर जाए, फिर भी वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको नहीं छोड़ना है। तो उस समय अगर वो कहाँ जॉब कर रहा है, अगर किसी के साथ धंधा वंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसको जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो इंसान अगर इसके पास आके बोलेगा कि भैया ये तुमको करना पड़ेगा, तुम नहीं करोगे तो आज से हम तुम्हारे साथ ताल्लुक तोड़ देते हैं। तो जो व्यक्ति को, संसार में हर व्यक्ति किसी के ऊपर थोड़ी बहुत तो निर्भर होती है, डिपेंडेंट होती है। हम 100% आत्मनिर्भर तो चाहे मोदी जी बताए, लेकिन कोई 100% आत्मनिर्भर होता ही नहीं है। हम किसी के ऊपर तो निर्भर होते हैं। तो वो इंसान जिसके ऊपर निर्भर हो उसको आप चित्र में लाइए और उसको बताइए कि वो इंसान को बताए कि उसको मानसिक समस्या है। तो उसको सीधा ऐसा नहीं बताना कि ये तुमको मानसिक समस्या है, तो मानसिक समस्या सुनने से वो बैक हो जाएगा। तो इसको बोलना कि तेरा जो हाथ का दर्द है ना, तेरा घुटनों का दर्द है ना, उसके लिए हम इलाज कर रहे हैं। ऐसा बोलना कि तेरी आंखें आजकल सुखी सुखी क्यों लगती है, तो तेरे बाल क्यों झड़ने लगे हैं और तेरा चेहरा क्यों सूख गया है, ऐसा मतलब इसको फिजिकल सिम्टम्स बता के हमारे पास लाना, तो वो फिजिकल सिम्टम्स के लिए तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें जो दवाई देनी हम लोग देंगे, तो कई लोग ऐसे भी अच्छे हो जाते हैं। तो दिस इज द वे टू कन्विंस द पर्सन। फिजिकल सिम्टम्स के बारे में अगर बता कर लाएंगे ना तो वो अचूक आएगा। इसको देख लो कि इसको अपने बालों की चिंता है तो बालों की बात करके लाओ, इसको जो भी चिंता है ना, एक्सेप्ट मेंटल इलनेस की बात मत करना, और कोई बात करके उसको लाओ, तो उसके बाद वो धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर सर, थैंक यू चेतना, Thank थैंक यू। yes sir, you have to leave, तो नहीं तो हमारे दोस्त बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ रेडी है, अगर आपके पास टाइम है तो। दूसरा सेशन रखेंगे कभी। Okay sir, sure, yeah, friends will have another session, डॉक्टर साहब को अभी कल मैं नहीं आ पाया, संडे था ना, तो हाँ जी। संडे मुझे बाहर जाना था, अदरवाइज संडे इज द बेस्ट टाइम। हाँ। तो संडे को मैं तो कल नहीं प्रोबेबली नेक्स्ट संडे सर हमारे लिए आप रखे तो हमारे दोस्त अपने क्वेश्चंस के साथ आपके लिए रेडी रहेंगे। हम लोग 2-3 दिन के बाद फोन पे तय करके मेरी लॉग देख लेने दो, मेरा विजिटिंग बुक देख लेने दो, अगर संडे को फ्री होगा तो नेक्स्ट, या तो उसके बाद के संडे को। Okay sir, yeah, thank you very much for joining with us, friends. We have the pleasure of having Dr. Mukul Choksi with us, so he has to leave right now. Sorry, हमारे आज के questions थोड़े अधूरे रह गए हैं, लेकिन as per his discussion we'll have him back again. Thank you sir, thank you for joining. Thank you all. Keep healthy, keep fit. Thank you sir. And friends, over here we have with us our other friends also. बाकी अपने कोई अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हैं कुछ, तो आप अभी शेयर कर सकते हैं। यस, या चंद्रकांत जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी बोलिए। मैं ऐसा बोलना चाह रहा था कि अभी लॉकडाउन की वजह से स्ट्रेस और गुस्सा बहुत बढ़ गया, इसी की वजह से फैमिली कोर्ट में केस ज्यादा बढ़ गए, और उसको निपटाने के लिए मुकुल चौकसी से मेरा वो एक निवेदन देना था, वो नहीं कर पाए वो।
अच्छा सॉरी नेक्स्ट टाइम हम क्योंकि जरूर he is उनको my वापस he is my बुलाएंगे। friend. Mukul Choksi Yeah. is my friend ओ ओ because वाओ। I am lawyer other side. हाँ नहीं मुकुल जी बहुत लाइक हेल्पफुल है, बहुत सारे सोशल मीता जी बात क्या है कि लॉकडाउन की वजह से अभी केस ज्यादा बढ़ गया है, डाइवोर्स के केस ज्यादा बढ़ गए, मेंटेनेंस केस ज्यादा बढ़ गए, उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, इसलिए मैं पूछ रहा था, तो मुकुल अच्छा जी हाँ मेरा ध्यान नहीं दिया। हाँ जी नहीं कोई बात नहीं, हम उनको वापस से बुलाएंगे जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया है। आज उनका थोड़ा शेड्यूल टाइट था, वैसे वो कल भी आने वाले थे लेकिन कल का भी उनका सेशन थोड़ा उनका, आप तो उनके फ्रेंड है, आपको पता है उनका सेशन, उनका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। यस समझ दिव्या गया या ओके थैंक यू। थैंक यू। हाँ दिव्या जी आप क्या कुछ बताना चाहते हैं? मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। हाँ जी श्योर मुझे 20 साल पहले घुटने में दर्द था, तो पूरे नीचे नहीं बैठने का। मैंने एक्यूप्रेशर लिया, मुझे मालूम हुआ होता है, तो मैंने योग स्टार्ट किया और मेरा घुटना कैसा दर्द देता था वो मुझे नहीं मालूम। मुझे घुटना अच्छा हुआ। माइग्रेन की तकलीफ थी तो मैं धोती करने लगी तो मुझे माइग्रेन कम हो गया। तो इस प्रकार, और दूसरा मेंटली फिजिकली बहुत फायदा हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि योग करना चाहिए और सभी को करेंगे तो सभी लोग इसका फायदा ले सकेंगे। बस बहुत सही। बस कहना था। थैंक यू। थैंक्स फॉर शेयरिंग। ऐसे ही आप लोग अगर शेयर करते रहेंगे अपना एक्सपीरियंस तो सब लोग मोटिवेट होंगे। या वनीता जी यू आल्सो वांट टू शेयर समथिंग? इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हियर टू यू। क्या हुआ? जैसे कि हम योगा इंस्टीट्यूट से हैं और हमने हमेशा सीखा है, हंसा जी हमारी कहती है हम सब एक नमूने हैं। सो हर किसी का नेचर अपना अपना है। गुस्से को डील करने का एक ही गुरु मंत्र है, चुप कर जाओ। जब अपना वक्त आए तब बोलो, जब गुस्से वाला अगला इंसान हो तो आप चुप कर जाओ। दिस इज द गुरु मंत्र फॉर फाइटिंग्स एंड एंगर एंड ईगो एंड ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच वनीता जी। आपने छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात कह दी कि दैट्स रियली वेरी मच इम्पोर्टेंट। चुप करना भी बहुत, कहाँ पे बोलना और कहाँ पे चुप रहना, अगर ये चीज हमने सीख ली तो हम जीवन में जीत गए। यस या और किसी का और कोई क्वेश्चन या कुछ शेयरिंग है तो कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग शेयर करते हैं। हमारे ये सूर्य नमस्कार के बारे में भी अगर कुछ शेयर करना है हमारे साथ। मुक्ति जी आपको कुछ शेयर करना है? किसी का हाथ दिख रहा था बट आई एम सॉरी आई कुडंट सी। नीतल अंजलि नारायण। गुड हाँ मॉर्निंग। अंजलि जी गुड मॉर्निंग। नारायण बोलिए। बहुत बड़ा थैंक्स आपको। मैं एक्चुअली एक्टिव रहती हूँ, मैं स्पोर्ट में हूँ ज्यादा ही, बट समथिंग हैपन इन माय नी इन लॉकडाउन। तो मैं नीचे बैठना मुझे बिल्कुल मना कर दिया था, फिर भी मैंने उसको कोशिश किया कि नहीं मुझे नीचे बैठना ही है। और जब से मैंने सूर्य नमस्कार चालू किया है, हम लोग नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठ रहे। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। आई एम ग्लैड दैट इट्स इफेक्टिव फॉर यू। लेकिन हमेशा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जाइएगा। डोंट ओवरडू एंड डोंट अंडरडू। मेरा स्टेटमेंट हमेशा यही होता है, लिसन टू योर बॉडी। आपका बॉडी आपको बोलेगा कि वो आप कितना कर सकते हैं। सो जस्ट कीप ऑन लिसनिंग टू योर बॉडी। या मुक्ति जी? मुक्ति we can't see you. Yeah. हाँ बोलिए। हाँ आपका एक्सपीरियंस आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? बस आई एम वेरी हैप्पी कि नीतल के साथ ये सब एक्टिविटी करने को मिली। एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से हम कई जगह पे कुछ नहीं कर पाते थे, बल्कि हमारा ऐसा हो रहा है, सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हम लॉकडाउन है तो आई एम टायर्ड, मुझे बोर हो रहा है, मुझे ये हो रहा है।
इनकी वजह से मुझे ये फील हो रहा है कि मैं नीतल के साथ जुड़ी और ये सब एक्टिविटी मेरी हो रही है, तो इनसे मैं बाहर से तो फिट हो रही हूँ, मैं इनर भी फिट हो रही हूँ, मेंटली भी फिट हो रही हूँ और फिजिकली भी फिट हो रही हूँ। तो सूर्य नमस्कार तो बॉडी के लिए भी बेस्ट है और मेंटली भी अच्छे ही है। तो बस ऐसी एक्टिविटी करवाते रहो ताकि हम जैसे लोग सब उसके लाभ लेते रहे और हम सब फिट हो जाए। थैंक यू नीतल। थैंक यू। इनफैक्ट लाइक मुक्ति के लिए मैं ये कहूंगी कि बाकी सब लोग भले आपको कहते होंगे कि वो बोर हो रहे हैं, लेकिन मुक्ति को मैंने कुछ ज्यादा ओवरलोड कर दिया है एंड सी इज ओवर बिजी, उसके पास टाइम नहीं है। बाकी सब लॉकडाउन में टाइम क्या करे, टाइम पास कहाँ करे सोच रहे हैं, लेकिन राइट। मुक्ति को मैंने बहुत ज्यादा ओवरलोड कर दिया है बहुत सारी एक्टिविटीज के साथ। सो या ब्रेवो टू यू मुक्ति, यू हैव बीन कोपिंग अप। या थैंक यू, थैंक्स फॉर जॉइनिंग विद मी। थैंक यू डियर। हाँ जी, हाँ जी। और अभी किसी ने हाथ ऊंचा किया था, किसने किया था? मैं एक्चुअली किसी और का सुनती हूँ ना तो ध्यान नहीं रहता है। आप वापस से अपना अनम्यूट करके अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कर दीजिए प्लीज। Yeah, I think so we are done for the day, and thanks everyone for joining with us, and see you tomorrow. And आज हमारा 9th डे हमने कंप्लीट किया है ब्रेवो, एंड ऐसे ही बहुत जल्द हम 21 दिन कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद मेरा नेक्स्ट चैलेंज जो है वो 51 डेज वाला भी हम 21 दिन का कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए आप प्रिपेयर होंगे और हम सब करेंगे। और देखिए 21 सूर्य नमस्कार कितना इजीली हो पा रहा है। इट इज अचीवेबल, वन इट मोर इज थिंग, अचीवेबल। हाँ जी, कि या पहले जब भी ये चैलेंज रखी थी तब मुझे भी ऐसे ही फील हो रहा था कि एवरीडे 21 सूर्य नमस्कार यार कैसे होगा, अर्ली मॉर्निंग में उठना है और 21 बार 21 टाइम करेंगे सूर्य नमस्कार और 21 दिन के लिए। अभी ऐसे फील हो रहा है कि 7 कर दिया, बस अभी बाकी के कब कंप्लीट करूं, डन करना ही है। ऐसा हो गया है, तो इट इज वेरी या इनफैक्ट लाइक वेरी किसी ने मुझे कल बोला था यार ये 21 दिन के बाद हम सुबह क्या करेंगे। क्या मैंने करेंगे, बोला डोंट राइट वरी, हमारा 51 डे चैलेंज भी आ रहा है, डोंट वरी। सो नहीं या करेंगे। yes, थैंक yes. यू So, फॉर यू। yeah, stay connected and see you. We are Yes. Yeah, अश्विनी जी आपका अनम्यूट कीजिए, सुनाई नहीं दे रहा है। with you, Neetal. Yes, thank you, thank you. आपका सपोर्ट था हाँ मनीता नीतल जी, जी, तभी हम हम इसको चालू कर 51 पाए। के लिए Thank you. तैयार है, 51 के लिए तैयार है। Yes, good, good, very nice. नहीं, डोंट वरी, मैं किसी को छोड़ूंगी ही नहीं। कितने लोग ग्रुप लेफ्ट करके जा रहे हैं ना, उनको मैं वापस से योगा तो खींच मेरी के ले आ रही जिंदगी हूँ कि नहीं, यू कांट लीव। एक बार चैलेंज ले लिया तो ले लिया, अभी देयर इज नो वे आउट, आई वोंट लीव यू। So thank you everyone for connecting, and आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। जो डॉक्टर लोगों और हमसे की हमें करवाओगे। सलाह मिल रही है, देखो हम किसी अपने डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो इतना टाइम नहीं देते हैं, झट से लाइन रहती है और हमें थोड़ा भी पूरी बात भी नहीं बोल सकते। यहाँ आके हम सब बात बोल सकते हैं, आराम से डॉक्टर की हमें बात सुननी मिलती है, औरों के प्रॉब्लम के साथ हमारे कुछ प्रॉब्लम उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, वो भी हमें मिल जाते हैं उसके आंसर्स। बहुत अच्छा काम कर रही हो नीतल, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। आप लोग जुड़े रहिएगा, और ऐसे ही तो बहुत सारे हम ऐसे अच्छे सेशंस कर सकते हैं। और आप जुड़िए, और आपके साथ और भी जो लोग हैं उन सबको भी जोड़िए। जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप होता जाएगा, ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो, यही हमारा मेन एम है, मेन पर्पस है हमारा। वैसे व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो गया है, तो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अनदर ग्रुप आल्सो, सो डोंट वरी। सबको साथ में लेके ही हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। या संगीता जी, so nice to see you. Would you like to share your experience? संगीता जी भी एक्टिवली मेरे साथ बहुत सारे योगा सेशन में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी वो खुद भी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, और उनके सारे फैमिली मेंबर्स को भी जोड़ा हुआ है, उनके फ्रेंड्स भी जुड़े हुए हैं, और उनकी बेटी को भी इन्होंने इसमें जोड़ दिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। या
So yeah, let's leave for the day. Thank you everyone for joining, and have a nice and beautiful day. And see you tomorrow morning for the next Surya Namaskar session. See you. Bye-bye.